Hello friends, welcome to my channel My English Class at Math3 English. So my dear friends, in today's video, I'm covering a very important topic which is on idioms. You know, if you want to sound like a native speaker, it is very important to understand the idioms and use them in your sentences. Whenever you are talking to somebody, you should use these idioms, and also if somebody is talking to you, you should understand the meaning of these idioms so that you just sound like a native English speaker. My dear friends, in English, it is not like you have to translate everything. अगर आप हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. जैसे अगर आपको बोलना है वो कोई ऐरा गैरा नहीं है, अगर आपको ये बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट. क्या बनाया आपने? नो, you don't have to translate it. There is a ready-made sentence in English because the native speakers speak it differently, not like us. This is our way of speaking. The real translation is the real idiom which they use is not any Tom, Dick and Harry. So totally different. So my dear friends, you have to learn few idioms so that you can understand the emotions. Friends, you know, the knowledge is very important thing. If you have knowledge, you can understand everything. You can explore any area of study. So it is very important to enrich your knowledge. So keep going, keep studying. So watch the video till the end and make sure you have a pen and paper so that you can note down these idioms. Let's start. So friends, we will start now idioms and phrases. This is our class 2. Are you ready? So, this is your first idiom. A blessing in disguise. A beautiful sentence, a beautiful idiom. A blessing in disguise. First, you understand the meaning of it. It means something that seems bad at first, but has a good outcome. कुछ ऐसा जो पहले आपको लगे कि अच्छा नहीं है और बाद में उसका रिजल्ट अच्छा हो. होता है ना, कई बार हमारे साथ कुछ होता है और हमें लगता है कि ठीक नहीं हुआ, बाद में हम कहते हैं चलो जो हुआ अच्छा हुआ. अगर ऐसा ना होता तो हमारे साथ इतना अच्छा ना होता. तो इसको हमने कैसे देखो ट्रांसलेट किया है, इसके लिए हमने कैसे एक एग्जाम्पल से इसे समझाया है. लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी. आई फाउंड अ बेटर वन. So what is the example? Look at the example. Losing that job, उस जॉब का जाना मेरे लिए एक blessing in disguise था, क्योंकि मुझे उससे भी अच्छी जॉब मिल गई. तो अब blessing in disguise हम कब यूज करते हैं? जब हमें पहले लगता है कि वो चीज अच्छी नहीं थी लेकिन उसका आउटकम अच्छा आता है. सेकेंड वन, द सेकेंड वन इज बीट अराउंड द बुश. बहुत ही सुंदर इडियम है, बहुत ही प्यारा इडियम है. एंड ऑफन इट इज यूज बीट अराउंड द बुश. इसका मतलब होता है इधर उधर की बात करना, पॉइंट पे ना आके इधर उधर की बात बहलाना. टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग डायरेक्टली. कोई ऐसी बात है जो डायरेक्टली नहीं कही जा रही है बल्कि इधर उधर की बात की जा रही. कहते हैं ना सीधे पॉइंट की बात करो. तो जब बीट अराउंड द बुश हो तो हम बोलेंगे डोंट बीट अराउंड द बुश. एग्जाम्पल से समझते हैं. स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट हैपेंड. कितना खूबसूरत सेंटेंस है. स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट हैपेंड. The third one is a piece of cake. This one is also very easy. And a piece of cake आप ऐसे समझिए, हिंदी में हम कहते हैं कि हलवा है. कोई चीज बहुत आसान हो, something which is very easy. तो solving this math problem is a piece of cake for her. तो कुछ जो आपके लिए बहुत ही आसान आपको लगता है उससे आप बोल सकते हो that thing was a piece of cake for me, और that was seemed like a piece of cake. The next one is the break the ice. ये भी बहुत ही खूबसूरत इडियम है एंड इसे हम यूज करते हैं. ब्रेक द आइस का मतलब है कुछ ऐसा जो कि किसी सिचुएशन में है और कोई बात स्टार्ट करनी है, लोग शांत हैं, जैसे टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग. जैसे हम किसी पार्टी में हैं या किसी मीटिंग में हैं और
कोई एक होता है जो कि स्टार्ट कर देता है कन्वर्सेशन को, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक द आइस। या फिर ये समझो कि जैसे दो लोग एक दूसरे से नाराज है काफी टाइम से, तो कौन पहले इनिशिएट करता है बात करने का, तो जो करेगा उसने क्या किया, ही ब्रेक द आइस टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। तो ही क्रैक द जोक टू ब्रेक द आइस इन अ पार्टी। किसी पार्टी में कि ये सीन है और वहां पे किसी ने जोक मारा, तो और फिर बातचीत शुरू हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस। बहुत ही अच्छा आइडिया में, ब्रेक द आइस। नेक्स्ट वन इज द स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स टू रिवील अ सीक्रेट। इसका मीनिंग है स्पिल द बीन्स, कोई चीज है जो कि लोगों को नहीं मालूम है और आपने उसे खोल दिया। देखो इसका कितना प्यारा, अगर आप इसको अपने दिमाग में बिठाना चाहो तो बिठा भी सकते हो। स्पिल, स्पिल में ओपन करना है, स्पिल द बीन्स टू रिवील अ सीक्रेट। सेंटेंस बनाते हैं, डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द मीटिंग। हाँ, किसी भी एक सेंटेंस, किसी भी एक सिचुएशन में आप डोंट स्पिल द बीन्स कर सकते हैं। और अगर किसी सिचुएशन में आप ये जानना चाहते हैं कि क्या सीक्रेट है, प्लीज बताओ, तो यू कैन से डोंट स्पिल द बीन्स एंड टेल मी व्हाट हैपेंड। द नेक्स्ट वन इज द hit the nail on the head. Again, a very important idiom. Hit the nail on the head. अभी हमने जो beat around the bush सीखा था, आप इसको उसका अपोजिट समझिएगा। वहां पे हम इधर उधर की बात समझे थे, ये होता है टू द पॉइंट बात करना। टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम। किस चीज से बात, कहां से प्रॉब्लम है, उसी चीज को डिस्क्राइब कर देना। हिट द नेल ऑन द हेड, एग्जैक्टली बात करना है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हिट द नेल ऑन द हेड विद हर सजेशन। शी हिट द नेल ऑन द हेड, एग्जैक्टली उसी बात को करना अपने उससे सजेशन से, बिल्कुल पॉइंट की बात की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज द अंडर द वेदर। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड। हम इसको हिंदी में भी ऐसे यूज करते हैं कि मौसमी कोई चीज, उसको मौसम चेंज हुआ है इसलिए तबीयत खराब है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे यूज किया जाता है इसे अंडर द वेदर करके इंग्लिश में। फीलिंग अनवेल, अगर तबीयत नहीं ठीक है तो कह सकते हैं आई कुडंट गो टू वर्क टुडे एज आई वाज फीलिंग अंडर द वेदर। आई कुडंट गो टू द स्कूल टुडे एज आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। मतलब मुझे मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि मौसम वगैरह चेंज होता है, उस कंडीशन में ही इसको हम अंडर द वेदर कहते हैं। So, good sentence. The next one is also my favorite one, burn the midnight oil. तो burn the midnight oil का सीधा ये नहीं, इसका मतलब कि ऑयल जलाना। इसका ऑयल जलाना क्यों, ऑयल किसी ने मिडनाइट ऑयल को क्यों खर्च किया तेल को, क्योंकि उसने लेट नाइट तक काम किया होगा। टू वर्क लेट इनटू द नाइट, जब हम रात में जग कर या देर तक कोई काम करते हैं, तो वी कैन से इट लाइक दिस, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल एंड ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब बहुत ही मेहनत कर रहा है। To work late into the night. She burned the midnight oil to finish her project on time. She burned the midnight oil to finish her project on time. तो देर रात तक जगकर जो काम किया है उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है burn the midnight oil. The next one is the very good, very nice. The let the cat out of the bag. हमने देखा था spill the beans. It's let the cat out of the bag. उसी उसमें सेंस में है, पर ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, यहाँ पे सीक्रेट ही हम रिवील कर रहे हैं, पर वो एक्सीडेंटली, अचानक से, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ है, बहुत सरप्राइजिंगली आपने लेट द कैट, जैसे आपने बैग से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यू जस्ट कैट को बाहर निकाला आपने, तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अपने बैग से कैट बाहर निकालो, मतलब किसी सीक्रेट को एक्सीडेंटली बताना जो लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो। शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस। कमेंट में बताइएगा अपना सेंटेंस, प्लीज इसे बनाइए। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, वेरी नाइस इडियम। सो द नेक्स्ट वन, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, देखो कितना अच्छा है। और ये हम क्या कहते हैं, ईद का चांद कहते हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल ये वही सेंटेंस है। अब ईद का चांद को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसीलिए आपको कुछ इडियम्स को रेडीमेड है उनको याद कर लो, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ द नेटिव स्पीकर्स स्पीक एंड यू विल अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग एंड फीलिंग एंड इमोशन ऑफ दोज this language. Once in a blue moon, something that happens very rarely, जो बहुत कम होता है। जैसे ईद का चांद हम कहते हैं ना, तुम तो ईद का चांद हो गए, तो कभी कभी मिलता है, बहुत ही कम मिलते हैं जो लोग। तो he visits his hometown once in a blue moon, बहुत कम जाना, तो once in a blue moon हम यहाँ यूज कर सकते हैं। So ये थे हमारे आज के 10 idioms। तो फ्रेंड्स प्लीज आप कमेंट में बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, एंड ठीक है, हम बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। और
Please keep practicing and enrich your knowledge, because knowledge is the only tool to learn something new. And practice करते रहिए रोज 15-20 मिनट. You just keep to um, mug up your English and to practice your English, so that you can improve in a limited time. This is mere a language. You can improve this also. So friends, thanks for this and see you in next video.